اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، صدا حق سننے والے ساتھیوں، آج 6 شعبان 1442 ہجری، 20 مارچ 2021 عیسوی، 7 گتے چیت 2077 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں سوال و جواب کا لائیو پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج کا لائیو پروگرام ہے اور یہ پروگرام ریڈیو کے ساتھ ساتھ فیس بک کے 2 ID پر بھی اللہ کے فضل سے لائیو چلتا ہے۔ ایک ہے NID نیپال اسلامک دعویٰ سینٹر اور دوسرا ہے جنک نندنی FM۔ اور آپ اگر NID پر ہم سے جڑ رہے ہیں تو آپ اپنا سوال بھی لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہیں کسی مسئلے کی، کسی بات کی جانکاری نہ ہو تو تم جانکار لوگوں سے پوچھ لیا کرو۔ آج ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے وہی پرانا نمبر 041 590 239 041 590 239۔ اس پر آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پروگرام آپ جنک پور دھام دھانوشا نیپال کے جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سن رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک رمضان المبارک گزشتہ سال سے مسلسل یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پروگرام کنٹینیو چلتا رہے گا۔ ہم سے جڑے ہیں فیس بک پر شکیل رائن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جڑے ہیں، اور میری گزارش ہے فیس بک والے بھائیوں سے اور ریڈیو والوں سے کہ آپ لوگ سوالات کریں اور جوابات پانے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں ہی کی وجہ سے آپ لوگوں تک دین اسلام کی صحیح بات پہنچانے کے لیے یہ محنت کی جا رہی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پہنچ، اللہ تعالیٰ کا دین ایسے ایسے لوگوں تک پہنچے، اور جگیاسا والے اور جو لوگ خواہش مند ہیں وہاں تک دین کی باتیں پہنچے۔ میرے بھائیو دوستو، آج کا نمبر ہے 590 23 590 239۔ اس پر آپ کنٹیکٹ کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ جب تک کسی کا سوال نہیں آ رہا ہے تو جواب کے طور پر جو گزشتہ سال 1-2 سوالات رہ گئے تھے، ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پھر قطر سے نئے کچھ سوالات آئے تھے واٹس ایپ پر، ان میں سے بھی چند کے سوالات دینے کی کوشش کروں گا، لیکن اس دفعہ سوالات کے جوابات کچھ لمبے ہیں، اس لیے جو ہے سامعین کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے بوریت حاصل نہ کرے اور قرآن حدیث کی بات کو غور سے سنیں۔ پہلا سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت چھینک آ جائے تو کیا الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مدلل جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں گے۔ ایک سائل
जवाबन अर्ज है कि नमाज की हालत में चाहे फ़र्ज नमाज हो या नफली नमाज हो, छींक आए तो राजिह कौल के मुताबिक अपने आप को सुनाते हुए आहिस्ता से अल्हम्दुलिल्लाह कहे। यही कौल जमहूर उलमाए किराम का है और इसी के कायल शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह भी हैं। नीज़ सऊदी फतवा कमेटी का भी यही फतवा है। दलील, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अतशा अहदुकुम फलयकुल अल्हम्दुलिल्लाह, बुखारी हदीस नंबर 62-24। जब तुम में से किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। इस हदीस से वजहुल इस्तिदलाल क्या है, दलील पकड़ने की वजह क्या है, तो कहते हैं कि यह हदीस आम है जो नमाज और गैर नमाज के औकात को शामिल है। यानी नमाज में भी छींक आए और गैर नमाज में भी छींक आए तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। दूसरी दलील, रिफा बिन राफ़ि ज़ुरक़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि सल्लैतु खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतस्तु फ़क़ुल्तु अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। रिफ़ा कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा तो मुझे छींक आई तो मैंने ये कलमात कहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। ये मैंने जुमला कहा। फलम्मा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शरफ़, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद जब हमारी तरफ फिरे तो फरमाया मनिल मुतकल्लिम फ़ी सलाह, नमाज में किसने गुफ्तगू की, नमाज में किसने गुफ्तगू की। फलम यतकल्लम अहदुन, तो कोई नहीं बोला। फिर दूसरी बार फरमाया कि मनिल मुतकल्लिम फ़ी सलाह, नमाज में किसने बोला, तो कोई नहीं बोला। फिर तीसरी दफ़ा फरमाया कि नमाज में किसने गुफ्तगू की, तो रिफ़ा ने कहा कि अना या रसूल अल्लाह, मैंने ये कलमा कहे हैं। काल, आपने फरमाया कैफ़ क़ुल्त, कैसे तुमने कहा, बताओ दोबारा कहो। तो मैंने पूरे जुमला को कहा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़द इब्तदरहा बिज़अतुन व सलासून मलकन अय्युहुम यसअदु बिहा, कि अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि लगभग 72-73 फरिश्ते दौड़ रहे थे कि इस कलमा को कौन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सबसे पहले पहुँचाए। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है। तिरमिज़ी हदीस नंबर 404, अबू दाऊद हदीस नंबर 777 और नसाई हदीस नंबर 971, और शेख अलबानी ने इसको हसन करार दिया है और इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको हसन करार दिया। खुलासत हदीस जो है आपके सामने मैंने बयान कर दिया और इससे वजहुल इस्तिदलाल भी वाज़ेह है। लेकिन बुखारी शरीफ में यही रिवायत आई हुई है और उसमें छींक का तज़करा नहीं है, बल्कि रुकू से उठने के बाद ये कलमात कहे गए। चूँकि दोनों ही हदीसें सही और हसन हैं, इसलिए कुछ उलमा ने उसकी तत्बीक इस तरह निकाली है कि मुमकिन है कि रिफ़ा को रुकू से सर उठाते वक्त ही छींक आई हो, तब ये कलमात उन्होंने कहे हैं। यानी जब रुकू से उठे उसी वक्त छींक आई और उसी वक्त जो है वो कलमात कहें, तो दोनों की बात मिल गई। तो इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि अगर बहालत नमाज छींक आए तो अपने आप को सुनाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहे। यहाँ तंबीह के तौर पर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ज़ोर से अल्हम्दुलिल्लाह न कहे ताकि दूसरे नमाजियों को डिस्टर्ब न हो। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाला जवाब में यरहमुकल्लाह न कहे, क्योंकि ये नमाज के मनाफी अम्र है, इसलिए इस जुमला में एक दूसरे को खिताब करना है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, हमसे जुड़े हैं अबू अफराज एहतशाम। इनका सवाल है कि जहेज लेने वालों की तकरीब में शामिल होकर
खाना खाया जा सकता है क्या, और निकाह पढ़ाना ऐसे लोगों को कैसा है। देखिए, खाना की हुर्मत और निकाह पढ़ाने की हुर्मत इससे हमारे ख्याल से जो है साबित नहीं होती है, लेकिन जहेज लेना और जो है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ही गलत काम है। और ये डकैती और चोरी के, वो चोर और डकैत आते हैं लूटने के लिए और ये शराफत से आते हैं लूटने के लिए, तो ये शरीफ डकैत लोग हैं, तो ये अलग मामला है। लेकिन खाने की हुर्मत और हिल्लत की बात अलग है और निकाह पढ़ाने न पढ़ाने की बात अलग है। हालांकि अगर चाहते हैं उस्ताद या उलमा इकराम कि हम तंबीह के तौर पर उनको सबक सिखाने के लिए और ताकि रस्म न रहे, दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए माशरे से, निकाह न पढ़ाए, अच्छे लोग उसके खाने में शरीक न हों, तो ये ताज़ीरन ये बेहतर बात है। इस तरह करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे का रास्ता खुलेगा और लोग इसकी मुसीबत से दूर रहेंगे। और अगर जहेज को ख़त्म करना चाहते हैं तो सिर्फ उलमा ही नहीं, बल्कि उलमा के साथ साथ मुआशरे में जो लोग हैं उन सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के तब जाकर के कदम आगे बढ़ेगा और ये मुसीबत रुकेगी। और सबसे अहम बात यह है कि जब तक हमारे दरमियान मीरास बांटने का, यानी माँ बाप की जो का तरका है, जो माल है, वो बांटने का जो है वाजिब जो है वो नहीं, जब तक हमारे दरमियान लागू होगा कि भाइयों के साथ या बेटों के साथ बेटियों का भी हक है, ये चीज़ अगर जब तक नहीं आएगी तब तक इस जहेज की मुसीबत से कोई किसी को बचा नहीं सकता। चाहे हुकूमत कितनों हुक्म लगाए या चाहे मौलवी उलमा कितनों दलील दें या उसके खिलाफ करें, उससे कुछ फ़र्क लोगों को नहीं पड़ेगा। इसलिए कि इस हराम खाने की जो आदत पड़ गई है वो पड़ती ही रहेगी और कहाँ तक जाएगी। इसीलिए किसी ने कहा कि जहेज खाने वाले नस्लन दर नस्ल जो है ये हराम खोर होते हैं, नस्लन दर नस्ल हराम खोर होते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस तरह करने से जैसे रौथट के बारे में इंटरव्यू आया था नेपाली में कि वहाँ कुछ समाज सेवी लोग, गांव घर के लोग, नेता लोग और उलमा किराम ये सब मिल करके एक कमेटी बनाए हुए हैं और वो लोग डायरेक्ट निकाह की महफिल में जाते हैं और वहाँ लोगों से दरियाफ्त करते हैं कि भाई तुमने लिया या नहीं लिया है जहेज। तो वहाँ झूठ बोलने से फिर दोनों फरीक को मस्जिद में लाते हैं, वहाँ कसम खिलवाते हैं और जब साबित हो जाता है कि इन लोगों ने जहेज लिया है तो हत्तल मकदूर वो लेकर के बेटी वाले को वापस किया जाता है। तो ये सराहनीय कदम है, इस तरह का कदम हमें उठाना चाहिए और उठा करके हम जो है इसको अगर मुआशरे में लागू करें तो हमारे लिए कामयाबी इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगी। अल्लाह वालम बिस्सवाब। मोहम्मद सगीर आलम, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। फिर अबू अबराज एहतशाम लिखते हैं कि कुछ मौलवी अक्सर सेल्फी मार कर फेसबुक पर अपलोड करते हैं, कैसा है जज़ाकल्लाह। सिर्फ मौलवी ही के लिए क्यों पूछ रहे हैं एहतशाम भाई, वो सारे लोगों के लिए पूछे। ये सेल्फी तेल्फी का क्या जो है, ये क्या इसकी मुसीबत कहाँ से आ गई पता नहीं। आज तो तीमारदारी कीजिए, मरीजों की रेख देख कीजिए, उस वक्त भी वीडियो और जो है फोटो लेते हैं। माँ बाप की खिदमत कीजिए, उस वक्त भी फोटो लेते हैं। माँ बाप को सलाम कीजिए, उनको सहारा दीजिए, उसका भी फोटो लेते हैं। और तो और खाना काबा में जाते हैं उम्रा और हज करने के लिए, तो एहराम पहनते वक्त का भी फोटो और वीडियो, और उम्रा करते हुए का फोटो और वीडियो, और उससे भी अगर नहीं होता है तो ईमो पर या फेसबुक पर लाइव दिखलाते हैं कि देखो मैं उम्रा कर रहा हूँ, मैं उम्रा कर रहा हूँ। तो ये सारी मुसीबतें सेल्फी की और ये सब रियाकारी, दिखावा, ये सारी चीज़ें आ गई है। इसलिए हमारी इबादत में कोई जान नहीं बाकी रही, हमारी इबादत में कुछ भी बाकी नहीं रहा मेरे भाइयों दोस्तों। इसलिए सेल्फी तेल्फी ये सब बकवास खुराफात से हमें
हम उलमाए किराम को तो दूर रहना ज़्यादा ही मुतअक्किद है, साथ साथ हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को इन मुसीबत से दूर रहना चाहिए और बचना चाहिए। सिर्फ मौलवी ही के लिए नहीं है कि सेल्फी लेना जायज़ नहीं, मौलवी को नहीं, ये सारे लोगों को ये फालतू बकवास खुराफात में पढ़ करके इस तरह करना जायज़ नहीं है। और तो देखा गया है कि कुछ इमाम भी अपने हुजरा में, इमामत के हुजरा में जो है डांस करके और टिकटॉक या क्या मुसीबत है वो बनाते हैं और उसको भी शाये करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, शर्म आनी चाहिए इंसान को कि कैसे कैसे लोग दुनिया में पैदा हुए हैं और इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये प्रोग्राम आप जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ जनकपुर धाम धनुषा नेपाल से सुन रहे हैं और आज का नंबर है 041 590 239 590 239। इस पर आप फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। और अल्लाह ही जानता है कि जब से नेट का सिस्टम आया है तब से लोग मोबाइल से बात करना और फ़ोन लगा करके पैसा 1 रुपया भी खर्च करना शायद लोगों को गवारा नहीं जाता है। उसके अलावा हज़ारों हज़ार रुपये का गुटखा खाते हैं और चाय पीते हैं, पान खाते, क्या क्या करते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन दीन की बातें हों और अच्छी बातें पूछने के लिए हो तो फिर सब की जो है सबका बैलेंस ही ख़त्म हो जाता है। चलें, अल्लाहुल मुस्तआन। दूसरा सवाल है जो फेसबुक पर आया हुआ था गुज़श्ता हफ्ता या पेवस्ता हफ्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की फजीलत क्या है और ख़ास कर जुमा के दिन। एक साइल फेसबुक पर जवाबन अर्ज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। जैसे अन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा समिअतुमुल मुअज़्ज़िन फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल सुम्मा सल्लु अलैहि फ़इन्नहु मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन। कि जब तुम मुअज़्ज़िन को सुनो आज़ान देते हुए तो जिस तरह मुअज़्ज़िन कह रहा है उसी तरह तुम भी कहो, फिर मेरे ऊपर दरूद भेजो, इसलिए कि जिसने मेरे ऊपर एक बार दरूद भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 मरतबा दरूद भेजेगा। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हदीस नंबर 384। दूसरी दलील अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिही अशरन, कि जिसने मेरे ऊपर एक बार दरूद पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा, 10 मरतबा रहमतें भेजेगा। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 485। इसी तरीके से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हेलो, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलवातिन व हुत्तत अन्हु अशर खतियात व रफ़िअत लहू अशर दरजात। ये सुनन नसाई की रवायत है, हदीस नंबर 1297 और शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया है। माना तर्जमा यह है कि मन सल्ला, जिसने मेरे ऊपर एक बार दरूद भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। देखिए, 10 रहमतें नाजिल करेगा, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि 10 गुनाहें माफ़ करेगा। तीसरा फ़ायदा कि 10 दर्जात बुलंद होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे। तो इस हदीस में दरूद सलाम भेजने के 3 फ़ायदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमअह फ़ीहि ख़ुलिक़ आदम व फ़ीहि क़ुबिदा व फ़ीहि नफ़ख़ा व फ़ीहि सअक़ा फ़अक्सिरू अलैहि मिनस्सलाति फ़ीहि फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया। कि तुम्हारे सारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। उसी में आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दिन वफ़ात भी पाए और उसी में क़यामत के करीब जो है सूर में फूंका जाएगा और उसी दिन जो है क्या कहते हैं बेहोशी छाएगी। तो तुम क्या करो, फ़अक्सिरू अलैहि मिनस्सलात,
ज़्यादा जुमा के दिन मेरे ऊपर दरूद भेजो। फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया, इसलिए कि तेरी दरूद, तुम लोगों की दरूद मेरे ऊपर पेश की जाती है। क़ाल, रावी कहते हैं कि क़ालू या रसूलल्लाह व कैफ़ तुअरज़ु सलातुना अलैका वक़द अरिमता, कि अल्लाह के रसूल हमारी दरूदें कैसे आप पर पेश की जाएंगी जबकि आप जो है वफ़ात पाने के बाद आप जो है कब्र में चले गए। और अरिमता का माना होता है कि मिट्टी में मिल जाना, जिस तरह से और मुर्दे लोग मिट्टी में मिल जाते हैं तो उस तरह से आप मिट्टी में मिल जाएंगे, तो कैसे आप पर दरूद भेजी जाएगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुगालतों को दूर करते हुए फरमाया कि इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल हर्रमा अलल अर्दे असादल अंबिया, कि बेशक के अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर अंबिया किराम के जिस्मों को खाना हराम करार दे दिया है, जिस्मों को खाना हराम करार दे दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह ज़िंदगी में तरोताज़ा थे, उसी तरीके से बरज़खी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजार रहे हैं, और आपके जिस्म का एक बाल भी ज़मीन ने नहीं खाया है। अल्लाहु अलम। बहुत सारे लोग यहाँ कह देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ु बिल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। इस तरह का जुमला कहना ये बहुत बड़ी गुस्ताखी और इस हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए ऐसा जुमला कहने से इंसान को परहेज़ करना चाहिए, वरना अपने आमाल की फ़िक्र करनी चाहिए। ये अबू दाऊद की रवायत है, हदीस नंबर 1047, और शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया है। इस हदीस से भी पता चला कि जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आज हम लोग इस बात से बिल्कुल गाफिल रहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, सिर्फ नमाज में एक टाइम है कि तशहुद में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, नहीं तो जिस वक्त भी हो उठते बैठते हमें दरूद पढ़नी चाहिए और दरूद भेजनी चाहिए मेरे भाइयों दोस्तों। लेकिन एक दरूद जो है दरूद इब्राहिमी है, जो सबसे अफजल है, और उसका शॉर्टकट जो मुहद्दिसीन किराम ने अपनी किताबों में लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें दोनों दरूद भी आ गई और सलाम भी आ गया। एक पॉइंट की बात मैं यहाँ बता दूँ तालिब इल्मों के लिए कि कहते हैं कि एक होता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दुआए कलमा, और एक होता है कि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये एक खबरिया जुमला है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो खबरिया जुमला कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, तो ये खबरिया जुमला है। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक। तो इसमें दो चीज़ आ गई कि बंदा दुआ कर रहा है कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल फरमा। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं यहाँ चाहता हूँ कि दरूद शरीफ के पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं वो मैं थोड़ा आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। उससे पहले मोहम्मद सग़ीर आलम साहब का एक सवाल आया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि नमाज में या टॉयलेट में, नमाज में या टॉयलेट में छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं कि नहीं। नमाज के बारे में तो मैं जवाब दे दिया कि नमाज के बारे में आहिस्ता से कहे, लेकिन सुनने वाले उसका जवाब नहीं देगा। ज़ोर से नहीं कहना चाहिए कि उससे जो है क्या कहते हैं डिस्टर्ब होगा। मैं पूरी दलील के साथ मैं बयान किया हूँ, आप प्रोग्राम के बाद वो बातें सुन सकते हैं, आप रिमूव करके इस तरफ आकर के आप कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि आपने फरमाया कि टॉयलेट में अगर छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। नहीं, जुबान से हम अदा नहीं करेंगे वहाँ पे टॉयलेट में। अगर मन ही मन में बगैर होंठ खोले हुए अगर कहे तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि टॉयलेट में अंदर घुसने के बाद दुआ पढ़ते हैं, दरवाज़ा लगाने के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। ये सही नहीं है, बल्कि टॉयलेट में दाखिल होने से पहले हम ये दुआ पढ़ें। इसी तरीके से अगर हम मैदान में हम टॉयलेट करने जा रहे हैं तो कपड़ा ऊपर उठाने से पहले हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से कुछ लोगों को देखा गया है कि नहाते रहते हैं हम्माम में अंदर
और उसी में जो है ज़ोर ज़ोर से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहते हैं, जबकि वो टॉयलेट है उसमें ज़िक्र इलाही करना दुरुस्त नहीं है। इसलिए इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह अल्लाम बिस्सवाब। तो मैं कह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो मैं आपको बतला रहा हूँ। पहला फ़ायदा यह है कि इससे गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इससे गुनाह माफ़ कर देता है। मैं मुख्तसर तौर पर बयान कर रहा हूँ और इसकी दलील जो है ऊपर गुजर चुकी है, और एक दलील और मैं पेश करना चाहता हूँ। वो क्या है कि अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बड़े खुश खुर्रम बेदार हुए, तो कहा गया कि या रसूल अल्लाह, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, अस्बहतल यौम तय्यबन नफ्स, कि आज आप सुबह किए हैं, बेदार हुए हैं, बड़े खुश होकर नजर आ रहे हैं, माशाअल्लाह आपके चेहरे पे योराफी वजह कल बिश्र, आपके चेहरे पे खुशी ही खुशी टपक रही है, क्या बात है, कोई खास खुशखबरी है हम लोगों के लिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अजल, हाँ, आतानी आतिम में रब्बी, कि मेरे पास मेरे रब की जानिब से आने वाला आया, यानी ख्वाब में, फ़क़ाल मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका सलातन, तो उन्होंने, आने वाले ने कहा कि आप पर आपकी उम्मत में से कोई एक बार दरूद पढ़ेगा तो कतबल्लाहु लहू बिहा अशर हसनात, तो अल्लाह तबारक तआला उसके बदले में 10 नेकियां लिखेगा, व महा अन्हु अशर सय्यात, और अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाह को माफ़ करेगा, 10 गुनाह को माफ़ करेगा। देखिए मुस्नद अल मौसूई अल जामिल अल कुतुब अल अशरा, जिल्द 5 सफ़े 182, और शेख अलबानी ने इसको हसन करार दिया है। और एक हदीस ऊपर गुजर चुकी है जिसमें 3 फ़ायदे हमने बयान किए थे। कहते हैं कि वह ये जो है, ये कि दरूद व सलाम से सिर्फ छोटे छोटे गुनाह माफ़ होंगे, बड़े गुनाह जो कबीरा गुनाह है उनके लिए तौबा करना ज़रूरी है। दूसरा फ़ायदा यह है कि दरूद व सलाम पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले भी बयान किया। और वो हदीस है कि मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अशर सलवात व हत्ता अन्हा अशर सय्यात व रफ़अहु बिहा अशर दर्जात, कि दरूद पढ़ने से जो है 10 दर्जे बुलंद होते हैं, ये गुजर चुका। तीसरा फ़ायदा है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की फरमाबरदारी है, यानी अल्लाह ताला हमें खुद हुक्म दे रहा है कि तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ो, जैसा कि फरमाया सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, रहमतें नाज़िल करते हैं। तो क्या करो मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो ऐ मोमिनो तुम भी नबी पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। देखिए पहले तमहीद बांधा अल्लाह ताला ने कि अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी नबी पर दरूद सलाम भेजते हैं, रहमतें भेजते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, तो ऐ मोमिनो तुम भी नबी पर दरूद और सलाम भेजा करो। माशाअल्लाह आजकल देखते हैं नबी का नाम आता है और ज़ुबान पे कुछ भी नहीं चलता है, ख़तीब खुतबा में और मुक़र्रिर अपनी तकरीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार नाम लेते हैं, लेकिन ये तौफ़ीक़ नहीं होती है कि कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह लें। ये तो खुशखबरी और खुशबख्ती ये अहलुल हदीस के लिए है, जो लोग हदीसें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए कितनी खुशबख्ती की बात है कि हर हदीस में क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हदीस में पेश करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये शर्फ और फजीलत ये सिर्फ अहले हदीसों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो हदीस की तालीम देते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो सलाम आया है, दरूद है, उसका माना होता है रहमत। फरिश्तों की जानिब से जो है उसका माना है इस्तिग़फ़ार करना, और लोगों की जानिब से जो है वो दरूद सलाम वो क्या है, वो दुआ करना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। चौथा फ़ायदा है कि दरूद सलाम पढ़ने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत हासिल होगी, क़यामत के दिन क़ुर्बत हासिल होगी, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्न औलन नास बी यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैहि सलातन,
کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ آپ کو مل جائے گی حدیث المسند الموضوعی الجامع للکتب العشرہ جلد 5 صفحہ 185۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن لغیرہ ہی کہا ہے۔ پانچواں فائدہ ہے کہ غم، چنتا، فکر کو دور کرنے کا سبب ہے کثرت درود پڑھنا، کثرت سلام بھیجنا۔ اسی طریقے سے حاجات اور جو طلبات ہیں وہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اس میں بھی درود و سلام پڑھنے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور ہماری حاجات قبول ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، اللہ کے نبی میں بہت زیادہ آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، تو یہ بتائیے کہ میں کتنا پڑھوں آپ پر؟ فقال ما شئت، جتنا پڑھو تم جتنا پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ربو یعنی چوتھائی میں کروں، تو کہا کہ ما شئت، اور تم پڑھنا چاہو تو پڑھو۔ فإن زدت فهو خير لك، اگر چوتھائی سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے۔ قلت النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، کہا کہ آدھا، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے تو بہتر ہے۔ اس طرح سے 3/3 کہا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور زیادہ کرو اور زیادہ کرو۔ تو لاسٹ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلت اجعل لك صلاتی کلھا، تو میں پورے کے پورے وقت میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ تمہارے غم اور چنتا کے لیے یہ کافی ہے اور تمہارے گناہ کو معافی کرنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے میرے بھائیو دوستو۔ تو اس حدیث سے، یہ حدیث ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 2457، اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں کتنے بڑے بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ چھٹا ہے فائدہ جو ہم نے تھوڑا سا بیان کر دیا ہے کہ دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء کرام کہ دعا کے شروع میں بھی درود پڑھنی چاہیے، اور دعا کے بیچ میں بھی پڑھنا چاہیے، اور لاسٹ میں بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آیا اور نماز پڑھا، نماز کے بعد اس نے دعا کیا کہ اللہم ارحمنی، میرے اوپر رحم فرما۔ نہ اللہ کی ثنا بیان کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھلایا کہ پہلے تم اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، پھر اپنے نبی پر درود پڑھو، پھر اپنی مانگ اللہ کے سامنے رکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ہماری دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے۔ تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر وارد ہے، فرمایا کہ کل دعائن محجوب، ہر دعا رکی ہوئی رہتی ہے، حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد پر درود پڑھ لی جائے۔ یہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 721۔ اور امام منذری نے کہا کہ یہ موقوفاً صحیح ہے اور اس کے روات بالکل ثقات ہیں، موقوفاً ہی زیادہ صحیح ہے۔ شیخ البانی نے کہا کہ یہ حدیث مرفوع کے روایت میں ہے، اس لیے کہ ایسی باتیں اپنی عقل سے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے الجامع صحیح للسنن والمسانید جلد 32 حدیث نمبر 360۔ اسی طریقے سے چھٹا فائدہ ہے کہ یہ درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے، پہچان ہے یہ۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بیٹا سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری حدیث نمبر 13، مسلم حدیث نمبر 70۔ اور یہ طبعی امر ہے، یہ فطری چیز ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کے لیے بھلائی کی دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے خیر کی دعائیں کرتا ہے۔ اور ایک مومن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھی جائے۔ میرے بھائیو دوستو، 7واں یا 8واں فائدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، جس کی دلیل گزر چکی ہے۔ ایک اور فائدہ ہے 8واں یا 9واں فائدہ کہ درود و سلام پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब होगी, शफाअत हमें नसीब होगी। जैसा कि वो हदीस गुजर चुकी है कि जब तुम मुअज्जिन को कहते हुए सुनो तो जैसा वो कह रहा वैसे तुम भी कहो, इसलिए कि आगे फरमाया उसमें कि फमन क्या कहते हैं, फ़क़ूलु मिस्ल मा यक़ूलु सुम्मा सल्लु अलैया फ़इन्नहु मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरन सुम्मा सल्लु लिल वसीला फ़इन्नहा मंज़िलतुन फिल जन्नह ला तंबग़ी इल्ला लिअब्दिन मिन इबादिल्लाह व अर्जू अन अकूना होना। कहा कि दरूद सलाम पढ़ो मेरे ऊपर अजान के बाद और मेरे लिए वसीला तलब करो, इसलिए कि जन्नत में एक वसीला है जो मैं चाहता हूँ कि वो एक बंदा के लिए है। वो बंदा जो है वो बंदा मैं ही पसंद करता हूँ कि मैं ही हूँ, तो जो शख्स मेरे लिए वसीला तलब करेगा उसके लिए शफाअत हलाल हो जाएगी। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 384। अला कुल्ले हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, और इसमें ये पढ़ करके हमें ही फ़ायदा है, हमारे लिए मोमिन ही के लिए फ़ायदा है, हाँ मोमिन ही के लिए फ़ायदा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिन्हें हम तिलावत की वजह से छोड़ दिए हैं। लेकिन एक बात हम बयान कर दें कि बहुत सारे लोग अजान से पहले, अजान के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये टाइम भी मेड इन इंडिया है, मेड इन नेपाल, और ये दरूद भी मेड इन इंडिया और मेड इन नेपाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजान के बाद दुआ यानी दरूद और ये दुआ ये पढ़ना आहिस्ता साबित है, न कि सारे लोग मैखी में पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, रेडियो पर कोई भाई सवाल नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक अम्र है और पता नहीं क्या वजह है, क्या बात है। अब्दुल्ला यादव दरभंगा से लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुकू से उठते वक्त इमाम साहब जो दुआ पढ़ते हैं क्या मुक्तदी भी पढ़ सकते हैं? अब क्या मुराद ली है पता नहीं। हाँ, हमने इस पर तो पूरी तफसील बयान की थी किसी प्रोग्राम में कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा तो मुक्तदी भी राज कौल के मुताबिक मुक्तदी को भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना चाहिए, उसके बाद रब्बना वलकल हम्द कहना चाहिए। जब उठे कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो मुक्तदी को भी कहना चाहिए, यही राज कौल है और इसकी मैंने बहुत सारी दलीलें दी थी उस टाइम में। अल्लाह वालम बिस्सवाब। इसी तरीके से मोहम्मद फैसल आलम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मुस्तकीम साहब और मौलाना अजीज़ सल्फ़ी साहब, क्या है सल्फ़ी साहब, मैं दिल्ली से मोहम्मद फ़ैहान क्या लिखे हूँ, मोहम्मद फैसल आलम माशा अल्लाह ताक़यामत तक इस तबलीग को कायम रखे, कायम व दायम रखे, आमीन। वो दुआ दे रहे हैं और अंग्रेज़ी अक्षर में लिखे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी दिल्ली में है या जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे और आपकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। आपने बड़ी अच्छी दुआ दी है हमारे लिए। मोहम्मद अजीज़ुल साफ़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलाम अंसारी, क्या चिकन फ्लावर्ड का कोई भी सामान चाऊ खा सकते हैं या नहीं? अब ये मैं समझने वाला, लेकिन जो मैं समझा वो बयान कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो चिकन से जो चाऊ आता है या चाउमीन आता है या कोई भी आता है या रम पम आता है जो लाल में आता है, लाल में जो है वो नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि उसमें पता नहीं है कि हलाल करके ही मुर्गा का शोरबा उसमें मिलाया गया है या बगैर जो है हलाल किए हुए। तो इसलिए चाऊ हो या रमपम हो जो लाल वाला होता है
जो शाकाहारी नहीं होता है, सब्जी वाला नहीं होता है, उसको नहीं खाना चाहिए। इसी में हमारे लिए भलाई है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, अब टाइम मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गया है और जो है एक बहुत लंबा सवाल है, उसका जवाब है। तो मैं चाहता हूं कि मुख्तसर तौर पर इसको बयान कर दूं इन 5 मिनटों में। इल्ला कि अगर बीच में किसी का सवाल आ गया फेसबुक पर तो ये अलग बात होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, इन नेपाल से या इंडिया से कहीं से भी कोई लोग जो है कॉल नहीं करते हैं, तो खैर ये उन लोगों की बात है। हमारा जो काम हम तो कर ही रहे हैं, और जिनको करना है या सुनना है या लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है वो कर सकते हैं। हर शख्स को नेकी की तौफीक नहीं होती है, ये अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहे उसी को तौफीक दे सकता है। एक सवाल है कि शौहर के इंतकाल के बाद औरत को कितने दिनों तक घर में ठहरना है और उसकी क्या सूरत है, और कहाँ कहाँ जा सकती है, और क्या कुछ काम कर सकती है, और क्या लिबास से वेतन करेगी, कोई रंग भी ख़ास है क्या? कुरान और हदीस की रोशनी में वजाहत कीजिए। रुस्तम अली मियाँ राजबिराज। इसमें तो बहुत सारे सवालात हैं और मैं मुबहम तौर पे यानी आम तौर पर मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ ताकि सारी चीज़ें इसमें सिमट आ जाए। तो जवाबन अर्ज है कि शौहर की वफ़ात के बाद औरत पर चंद चीज़ें करना और चंद चीज़ें छोड़ना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये सुन लें कि औरत पर ये इद्दत गुजारना यानी वफ़ात की इद्दत गुजारना, सोग करना, ये वाजिब है और ये 4 महीना 10 दिन है। 4 महीना 10 दिन है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, कि जो लोग तुम में से वफ़ात पा जाते हैं और अपने पीछे बीवियों को छोड़ते हैं तो उनकी बीवियों को चाहिए कि 4 महीना 10 दिन वो इद्दत गुजारे, सोग मनाए। एक बात। दूसरी बात, अगर उसके पेट में बच्चा है तो फिर वो कब तक इद्दत गुजारेगी? वो वज़अ हमल तक, यानी जब तक बच्चा पेट से फारिग ना हो जाए, बच्चा पैदा ना हो जाए, उस वक्त तक उसकी इद्दत होगी। चाहे उसकी इद्दत 4 महीना 10 दिन के अंदर ही हो या 4 महीना 10 दिन के बाद हो या उससे कम हो या ज़्यादा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे 6 महीना तक अगर बच्चा हो गया तो 6 महीना तक उसकी इद्दत रहेगी, या 4 महीना 10 दिन से पहले भी अगर उसका बच्चा पैदा हो गया तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, इद्दत से अलग थलग हम पाएंगे। इसी तरीके से कि वो औरत के जिसके साथ दुखूल नहीं हुआ, यानी शादी किया लेकिन सुहागरात नहीं मनाया और शौहर मर गया, उस पर भी इद्दत गुजारना वाजिब है। इसी तरीके से जिसको तलाक रजई मिली है, ऐसी तलाक जिसको लौटाने वाली तलाक है, तो उसमें भी अगर शौहर मर गया इद्दत के अंदर तो उस पर भी इद्दत गुजारना वाजिब है। अब आइए बताएं कि औरतों को क्या क्या नहीं करना चाहिए उस हालत में। पहली चीज़ यह है कि खुशबू नहीं लगाना चाहिए। खुशबू नहीं लगाना चाहिए। उम्मे आतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि वला तमस्सु तीबन, कि ये खुशबू नहीं लगाएगी। लेकिन खुशबूदार चीज़ अगर खाना चाहे, जैसे चाय में इलायची लौंग डाल करके या कहवा में, तो उससे कोई मुश्किल की बात नहीं है। मैं सरदन में इख्तिसार के साथ बयान करना चाहता हूँ। इसी तरीके से जीनत वाले जो कपड़े हैं वो कपड़े नहीं पहनेंगे, बल्कि आम कपड़े औरतें पहनेंगी। उसके लिए कोई ख़ास रंग नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उजला ही कपड़ा पहनेगी या काला ही कपड़ा पहनेगी या ऐसा करेगी वैसा करेगी, तो इसकी कोई दलील नहीं है। बल्कि वो कपड़ा पहनेगी जिसमें जीनत ना हो, भड़कदार ना हो, वो कपड़ा पहनेगी और जिससे जो है नज़रें मुल्तफित ना हो, नज़रें ना झुके, इधर उधर ना हो, तो ऐसे कपड़ा उसमें पहनना चाहिए। जीनत वाला कपड़ा पहनने से जो है ये पहनना हराम है, जिनको जो औरतें इद्दत गुजार रही हैं। उसी तरीके से जो है बदन को जीनत करने से भी दूर रहना चाहिए। जैसे मेहंदी लगाना है और काजल लगाना है, सुरमा लगाना है, जेवरात पहनना है, ये सारी चीज़ें हराम है उन औरतों पर जिनका शौहर मर गया है। इद्दत के वक्त में न मेहंदी लगा सकती है, न सुरमा लगा सकती है और न जेवरात पहन सकती है। इन चीज़ों से दूर रहना नहायत ही वाजिब है। इसी तरीके से जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है
کہ जिस घर में शौहर वफात पाया है उसी घर में इद्दत गुजारेगा, चाहे वो किराए का घर हो या जो है उसका शौहर उसका मालिक ना हो। हाँ, या जिस घर में मरा हो या जिस घर में औरत थी और वहाँ खबर आई शौहर के मरने की, तो 4 महीना 10 दिन तक उसी घर के अंदर रहेगी, उस घर से बाहर नहीं आएगी जाएगी। इल्ला ये कि वो घर के मालिक का किराया ख़त्म हो गया और उसके पास किराया देने का पैसा नहीं है और वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो इस सूरत में उस घर को छोड़ करके कहीं महफूज घर में जा सकती है। इसी तरीके से अकेले घर में रह रही है या वो घर टूटा फूटा है, खंडरात है, वहाँ डर है कि कोई मामला पेश आ जाए, तब उस घर को छोड़ करके दूसरे घर के तरफ मुंतकिल हो सकती है। यानी ज़रूरत के तहत, अगर जब ज़रूरत है शदीद, तो इस हालत में उस घर को छोड़ सकती है। लेकिन हम देखते हैं आजकल गांव घर में कि बहुत सारी औरतें हैं, मेहमानी करने के लिए चली गई इद्दत के अंदर और 2-2 दिन 3-3 दिन वहाँ रहती है, ये जायज़ नहीं है। हाँ, सुबह में निकले लेकिन शाम को घर वापस आना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरीके से जिस घर में रह रही है, अगर उसमें आग लग जाए या टूट जाए या और भी कोई मुश्किल पेश आ जाए या जो वारिसीन है उसको निकाल दे, तो उसके लिए जायज़ है कि वो कहीं दूसरी जगह जा सकती है। इसी तरीके से पढ़ने के लिए या काम जहाँ ड्यूटी है उसकी, वहाँ ड्यूटी के लिए दिन में जा सकती है, रात में उसके घर में गुजारना ज़रूरी है। इसी तरीके से घर का सामान लाने के लिए बाज़ार जाना और सामान लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, ये सारी चीज़ें जो है इद्दत में रहने वाली औरतें कर सकती हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, इसके ये कुछ बातें हुई जो इद्दत में रहने वाली औरतें कर सकती हैं। यहाँ 1 मिनट लेकर के आप लोगों को बताऊं कि इस इद्दत में रहने का फ़ायदा क्या है, हिकमत क्या है। हिकमत तो अल्लाह तबारक तआला हकीकत जानता है, लेकिन थोड़े सा मैं बयान कर दूं कि इसमें निकाह का जो निकाह चीज़ है और निकाह की अज़मत को बढ़ाना और उसकी अज़मत को लोगों के सामने ज़ाहिर करना कि निकाह में जो बंधन बंधा हुआ था वो बंधन वफ़ात पाने की वजह से टूट गया है, इसलिए इतने दिन है गुजारना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरी हिकमत यह है कि शौहर के हक़ की इसमें ताज़ीम पाई जाती है और जो मुआशरा में जो मेल जूल है उससे ये मोहब्बत बढ़ती है। तीसरी चीज़ यह है कि जो नेमत शौहर की है सूरत में थी, वो नेमत फौत हो गई, तो उसके अफसोस करने पर इतना टाइम लगा। इसी तरीके से है कि आजकल जो नई तहकीक आई है कि डॉक्टरी नाहिए से कि एक मर्तबा अगर कोई शौहर बीवी से मिलता है तो उस मिलाप का असर जो है आम औरतों में, आम हालात में 3 महीना रहता है, लेकिन और भी हालात में जैसे वफ़ात के वक्त औरत गमज़दा होती है तो उसके 4 महीना 10 दिन तक उसका असर रहता है। तो उस असर को दूर करने के लिए, ताकि दूसरे लोगों के जो उसमें मिलाप होने से मनी का इख्तलात हो जाएगा, उससे दूर करने के लिए ये चीज़ लगाई गई है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाई दोस्तों, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। मोहम्मद सगीर आलम साहब क्या लिखते हैं कि क्या निकाह में लड़की से पूछना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लड़की से पूछ ले तो बेहतर बात है, जाकर के कबूल इजाब करा ले। या नहीं तो अगर नहीं पूछना चाहते हैं तो रजिस्टर में जो आप लिखते हैं पूरे विवरण, वो सबसे पहले आप लड़की से साइन करवा लें और वही उसका इजाब कबूल हो गया। साइन कर दिया तो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हुए ज़िंदा रखे, और जब ख़ात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।